Hello, welcome my friends. We are going to start a webinar on pain management with Ayurved. This is by Ayurlink Ayurved. And today is a new topic, so everybody is more interested. We have a lot many friends. They have informed us to join with us, so we are waiting for a couple of minutes more. Meanwhile, if you are there, just let me know you are there and let us start putting some comments or self introduction so that I can know about you. Are you there? You can type down the message for me. You can type a message or you can put remarks under the video. We are waiting for some people more. Welcome to Ayurlink Ayurveda. You have just signed in to the live webinar from Ayurlink Ayurveda for the pain management with Ayurveda. Today's subject is very interesting and we are waiting for some more people to join with us. Hello. So we are waiting for more people to come and join with us because this is totally new subject for discussion and very interesting. So just give us a few more minutes and we'll start our webinar on pain management. Thank you. So what are you doing, Mahia? Can you just introduce yourself? Are you an Ayurveda doctor? Welcome new friends. Welcome and thanks for joining us. We are waiting for a couple of more friends to join with us for this new webinar on pain management with Ayurveda. So let me start with the introduction of Ayurlink Ayurveda and myself. Mostly, I know you knows me since many years. I'm Dr. Prerak Shah, practicing Ayurveda in Ahmedabad city since more than 32 years now. And I started my practice as a complete Panchakarma physician, and I was like the first among the private practitioner in the Gujarat state in India to practice full-fledged Panchakarma. So the Ayurlink Ayurveda started in 1988, and that onwards we are working to promote Ayurveda in all direction. So internet, computer, and modern technology, that how we can adapt it with Ayurveda in the field of Ayurveda. That was my interest in the beginning. I used computer first time in 1985, 86. In 87, I presented a scientific paper with the help of computer in the national seminar. So I'm very used to with technology. And then since last couple of years, since last 20 years, more than 20 years, I'm now traveling all around the world for conducting my lectures, series of my lectures and training programs. And most of these training programs are tailor-made for the particular education institute or the schools. Till today, we have more than 85 associates in the world where I visit them and
give them lectures or the training programs for their students. And difficult to say that Ayurveda in the West is booming. Yes, Ayurveda in the West is booming, but there is a different kind of Ayurveda, what is booming in the world. We normally say like classical Ayurveda, traditional Ayurveda, and commercial Ayurveda. So we know, everybody knows about it. जो क्लासिकल बुक में है वो क्लासिकल आयुर्वेद है, जो टेक्स्ट बुक में है, whichever the material, whichever the knowledge comes from the textbook, that is classical आयुर्वेद. कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम लोग करते हैं कि ट्रेडिशनली वी प्रैक्टिस, सो दैट इज़ अ ट्रेडिशनल आयुर्वेद. ट्रेडिशनल आयुर्वेद नॉर्मली सदियों से आयुर्वेद यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है इंडिया में, एंड दैट वी हैव बेटर रिजल्ट फ्रॉम दैट. सो ट्रेडिशनल आयुर्वेद, क्लासिकल आयुर्वेद. एंड इन द वेस्ट, इफ़ यू गो टू द वेस्ट देन यू कैन फाइंड आउट कि भाई वहाँ आयुर्वेद के नाम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है, which is never mentioned in books or which is not mentioned even in the tradition. So that is we call commercial Ayurveda. Now the question is pain management. The word pain management in Ayurveda. आप किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर को पूछो कि कैन यू ट्रीट द पेन, तो 2 मिनट के लिए ना, क्योंकि वी डोंट हैव पेन किलर. दिस इज द फर्स्ट बिलीफ दैट वी डोंट हैव पेन किलर. And everybody knows it, that Ayurveda doesn't have painkiller. So without painkiller, how you treat the pain? वात व्याधि है, विदाउट वायु आयुर्वेद में कुछ भी नहीं हो सकता, पेन नहीं हो सकता. शूल की जो बात है वो भी है. तो ये सब चीज़ें जो हमें मालूम है कि हाँ ये तो है ही, लेकिन पेन किलर नहीं है, नो पेन किलर. तो हाउ टू मैनेज द पेन? और आप किस पेन की बात कर रहे हो? विच पेन आर यू रिफरिंग? Are you referring for the acute pain or a chronic pain or a particular painful condition? So the confidence which Ayurveda doctor should have for the pain management, it is not there. Not in India, not outside the India. Anyway, we do have some minor processes under the title of Panchakarma, which can be helpful for the timing response in the pain. But as far as the medicine concerned, we can't say assured. We are not assured about like modern painkillers. There are many pros and cons. Okay, we'll talk about the later one. The subject pain and pain management is very, very interesting, because the first sentence I would like to tell you, there is no 100% pain management in the world. In the world, दुनिया में कहीं भी जाओ, कहीं भी आयुर्वेद के जरिए या तो एलोपैथी के जरिए या किसी भी मेडिसिन के जरिए आप 100% पेन को मैनेज नहीं कर सकते. सो देयर आर सो मेनी पेन क्लिनिक्स in Europe and in US and outside India. They only treat pain. Yet वो उसके बावजूद भी उनके पास 100% नहीं है. तो 100% पेन मैनेजमेंट जब नहीं है, तो हम आयुर्वेद में भी हमारे पास 100% है या नहीं, वो तो बात की बात है. लेकिन हम तो पेन की जब बात आती है वहाँ से हम पीछे आ जाते हैं. पेन मैनेजमेंट, नो, वी कांट. नाउ दिस इज अ मीथ. आयुर्वेद कैन हेल्प यू टू मैनेज द पेन. आप अपने पेशेंट को पेन ठीक कर सकते हैं. दैट इज डैम श्योर. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग. अब जब पेन की बात करते हैं तो पेन तो कितने साल पुराना है. आयुर्वेद के ज़माने में भी पेन है. आयुर्वेद ने शूल बोला है, वेदना बोला है. आपको सबको मालूम, दोज आर आयुर्वेद डॉक्टर हियर ज्वाइन मी, तो उनको मालूम है कि भाई आप वेदना या शूल तो आयुर्वेद में बताया है, और वेदना का रिलेशन बताया है बिना वाते न शूलम बिना वाते, कि वायु का तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा. जब तक वायु का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तब तक पेन पॉसिबल नहीं है. तो ये डेफिनेशन जब दी है आपको 5000 साल पहले, जब आयुर्वेद ने डेफिनेशन दी है, तो ये भी तय है कि आयुर्वेद को पेन के बारे में मालूम भी है. अगर पेन के बारे में मालूम है तो उनका पेन का मैनेजमेंट के बारे में भी मालूम है, क्योंकि चरक ने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये पेन वाली कंडीशन जो है उसको छोड़ दो या तो इसको बस ट्रीट ही मत करो. तो जब
एक साइंस के पास कोई डेफिनेशन है, उसके पास कोई ठोस है, आइडिया है, तो ज़रूरत है हमें सिर्फ हमारी बुक्स को फिर से देखने की, तभी जाकर उनमें हमें पता चल पाएगा। अब अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहूँगा कि व्हाट इज़ पेन एंड हाउ यू डिफाइन इट। पेन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सो यू नो देयर इज़ अ माइथोलॉजिकल स्टोरी अबाउट पेन. I think most of the people are not aware about the importance of pain as a mythological aspect. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी है विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कि शिव जी एक बार ध्यान में बैठे थे और शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव ने कुछ हरकतें की। अब वो तो नॉर्मल है, दोनों का रिश्ता हमें मालूम है, कामदेव हर एक तपस्वी को डिस्टर्ब करने को चले जाते हैं, लेकिन इस बार भूल से उन्होंने शिव जी को डिस्टर्ब कर दिया। अब शिव जी को जब डिस्टर्ब कर दिया तो शिव जी का तो गुस्सा सबको मालूम है। शिव जी बिकम वेरी एंग्री एंड ही थ्रो हिज त्रिशूल ऑन कामदेव। अब शिव जी के हाथ से निकला हुआ त्रिशूल, दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि त्रिशूल को रोक सके। सो कामदेव हैज़ टू रन। कामदेव भागते भागते चले गए विष्णु जी के पास। अब बोले कि विष्णु जी मुझे बचाइए, शिव जी ने, मैंने थोड़ी गलती की, शिव जी को गुस्सा आया है और शिव जी ने मुझे मारने के लिए ये त्रिशूल भेजा है। अब ये त्रिशूल को आप कभी कैसे भी इसको स्टॉप करिए, इसको रोकिए और मुझे बचाइए, वरना ये मेरी जान ले लेगा। तो विष्णु जी हंसे। विष्णु जी बोले कि शिव जी का तो मैं त्रिशूल रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको बचाना भी मेरी फर्ज बनती है। तो एक काम करते हैं कि मुझे ये त्रिशूल को कहीं ना कहीं तो लैंड करवाना पड़ेगा। ये जब आपके पीछे भाग रहा है तो उसको त्रिशूल को मुझे एक बार उससे आपका छुटकारा मिल जाए, ऐसा करना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान ने शिव जी के त्रिशूल को ही डायरेक्टेड इट टुवर्ड्स मदर अर्थ और इनको ज़मीन पर, अर्थ पर, धरती पे इसको त्रिशूल को जाने दिया कि भाई जाकर वहाँ पर लग जा। तो त्रिशूल जैसे ही मदर अर्थ में धरती पे लगा तो जैसे खूब गई। तीनों जो शूल, त्रिशूल की जो तीन अनीदार जो होती है, शार्प एजिज, वो धरती पे लगी और जहाँ पर लगी वहाँ पर एक फीलिंग पैदा हुई। धरती माता को एक फीलिंग हुई और वो फीलिंग का नाम है शूल, बिकॉज इट डेवलप फ्रॉम त्रिशूल। तीन शूल में से ये जो धरती पे लगने से जो डेवलप हुई उस वो फीलिंग को बोलते हैं शूल। इसीलिए इसको बोलते हैं पिंचिंग, नीडलिंग फीलिंग और पिंचिंग फीलिंग। नीडलिंग फीलिंग को इसको शूल बोला गया और शूल को बाद में हमने वेदना बोला है या तो पेन बोला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है माइथोलॉजी में। तभी की ये उत्पत्ति हुई, पेन की वहाँ से उत्पत्ति हुई, धरती पे उत्पत्ति हुई। तो धरती पे हर एक जीव को कभी ना कभी ये शूल या तो पेन से पाला पड़ता ही है। आपको पेन, बिना पेन जिंदगी पर किसी को पेन ही नहीं हुआ, ऐसे हम लोग मिलेंगे। अब बात आते हैं कि पेन इतना पुराना है और अब ये हाल भी है कि हम जानते भी है कि वायु के बिना पेन की उत्पत्ति संभव नहीं है या तो पेन बढ़ना संभव नहीं है। हर एक आयुर्वेद डॉक्टर को आप पूछेंगे तो बोलेंगे कि हाँ भाई वायु तो है तभी तो पेन है, बिना वायु आपके शरीर में पेन हो ही नहीं सकता। अब वायु है तो मतलब ये क्या है, वायु क्या है, वायु पित्त कफ की जब बात आप हमेशा बोलते रहते हो आयुर्वेद वाले, जब भी मिलते तब एक ही चीज़ आपसे तो आती है, वायु पित्त कफ, वायु पित्त कफ। तो आम आदमी को ये पता नहीं है। सामान्य लोग तो मानते हैं कि जो हमारे पेट में गैस होती है उसको वायु बोलते हैं ना, ऐसी बात हालत नहीं है। या तो फिर डकारे, खट्टी डकारे आती है और बाइल होता है, एसिडिटी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पित्त, तो ये भी नहीं है। और कफ जो बोलते हैं वो म्यूकस की बात होती है कि हाँ म्यूकस स्पुटम बाहर आती है, वो कफ है। तो ये तीनों चीज़ एक अलग से गलत सी जानकारी है लोगों के बारे में। जब आयुर्वेद का डॉक्टर कोई वायु पित्त कफ तीन चीज़ बोलता है, वो तीनों चीज़ का चीज़ है, वो एक फोर्स का नाम है। ये तीन फोर्सेस है, तीन प्रकार की एनर्जीज है और ये जो है एनर्जीज वो बॉडी को गवर्न करती है। आपको मैं कैसे बताऊँ कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर,
आपको तो कुछ भी दिखता नहीं है, फिर भी लाइट दिखती है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते। लेकिन जो वायरिंग है वो उसके अंदर 3 वायर हमारे यहाँ चलती है कि भाई एक पॉजिटिव वायर रहती है, एक नेगेटिव वायर रहती है और एक अर्थिंग बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। अगर ये तीनों चीज़ अगर ठीक से चलती है तभी इलेक्ट्रिसिटी घर में चलेगी, ऑफिस में चलेगी, कंप्यूटर चलेगा, बल्ब चलेगा, टीवी चलेगा, सब कुछ उसके ऊपर निर्भर है। अगर एक भी वायर उसमें से कट हो जाए या एक ही वायर में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है, और बैलेंस जब बिगड़ जाता है तब कंपोनेंट जो भी है घर में, जो भी फ्रीज लगा है, एसी लगा है, टीवी है, लाइट है, जो भी है वो नहीं चलेगा। तो ये जो कंपोनेंट की बात है वो 3 एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, तो ऐसे बॉडी भी ये 3 एनर्जी के ऊपर काम करता है, और वो एनर्जी को हम वायु, पित्त और कफ बोलते हैं। वायु एनर्जी की जब बात करते हैं तो मोर रिलेटेड विथ काइंड ऑफ मूवमेंट। शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी मूवमेंट है तो हम इसको वायु के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि भाई मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, कन्वर्जन, कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करना है वो पित्त का काम है, अग्नि का काम है, तो उसको हम पित्त बोलते हैं। तो आप ये मत समझिए कि जब आयुर्वेद का वैद्य बोलता है पित्त है तो पित्त का प्रॉब्लम है, इट डजेंट मीन कि सिर्फ बाइल की बात है। हम पेट में इकट्ठे हुए बाइल या एसिड की बात नहीं करते। वैसे ही कफ की जब बात करते हैं तो स्पुटम की बात नहीं करते। कफ माने स्ट्रेंथनिंग सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, बॉडी के सेल को बनाना, उसको प्रोटेक्शन करना, उसकी सुरक्षा करना, नया बनाना, सब कुछ इसके अंदर आता है कफ के अंदर। तो ये 3 फोर्स जो है वो 3 फोर्स को समझना बहुत ज़रूरी रहता है कि जो वायु, पित्त और कफ की थियरी बोलते हैं। हम इसको आयुर्वेद में त्रिदोष थियरी भी बोलते हैं कि त्रिदोष थियरी। अब त्रिदोष थियरी जब आपको थोड़े बहुत पता चलती है तब वायु की जब बात है वो पेन में मोर डोमिनेंट रहता है। अगर वायु नहीं है तो पेन की फीलिंग आपको जहाँ पर से मतलब हुआ है ओरिजिन, वहाँ से लेकर ब्रेन तक ये फीलिंग जाती है। वो आपको शायद मालूम होगा ये कॉन्सेप्ट कि मेरे हाथ पे चोट लगी है तो चोट यहाँ पर है लेकिन पेन यहाँ से है। जब तक ये यहाँ चोट लगी उसके लिए उसकी जो रिएक्शन हुई है, वो जो सेंसेशन है, वो सेंसेशन हाथ में से लेकर माइंड तक नहीं जाएगी तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे यहाँ पर पेन है। पेन पता करने के लिए सेंसेशन को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मूवमेंट हुई यहाँ से सेंसेशन चलकर पूरा नर्वस सिस्टम में होकर ब्रेन तक गई, वो पूरी मूवमेंट वायु के हाथ में है। पित्त और कफ ऐसे भाग नहीं सकते, दौड़ते नहीं है, वो लोग अपने अपने जो एरिया है उसमें ही काम करते रहते हैं। हालांकि उनको एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए भी वायु को ही बुलाना पड़ता है। तो वायु का जब कनेक्शन रहेगा तभी पेन की फीलिंग भी ब्रेन तक जाएगी और पेन वहाँ तक पता चलेगी कि भाई हाँ पेन है। अब शुरुआत करते हैं कहीं ना कहीं कि आपकी सबसे कॉमन कंप्लेंट क्या आजकल, हम वहीं से शुरुआत करते हैं। हालांकि ये वेब सीरीज़ हम करेंगे, इसको रिपीटेड आगे चलकर एपिसोड भी रहेंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें शेयर होगी, लेकिन हर एपिसोड में हम छोटी छोटी बातें डिस्कस करते जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट थिंग, मोस्ट कॉमन पेन। आप बैक पेन को बोल सकते हैं या तो नी पेन को बोल सकते हैं, दोनों चीज़ है। लेकिन पहली बात है कि स्पाइनल पेन की हम बात शुरू करते हैं। अब स्पाइनल पेन जो है तो स्पाइन को समझना पहले बड़ी ज़रूरी चीज़ रहती है। हालांकि जितने भी पेशेंट आते हैं उनको ये समझ बहुत कम रहती है या तो समझने की ज़रूरत भी नहीं लगती है। उनके लिए तो एक ही चीज़ है कि मेरा पेन कम करो, दैट्स ऑल। मेरा कमर का दर्द है, बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, आप कुछ दे दो और आप ऐसी कुछ चीज़ दो, दवाइयाँ दो, जो भी देना है, लेकिन मुझे 2 घंटे के अंदर ठीक कर दो। अब मॉडर्न पेन किलर वर्सेस आयुर्वेद की जब बात रहेगी तब बहुत सारी ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि ये टाइमिंग टेम्पररी फेज जो पेन किलर मेडिसिन के जरिए मिलती है, लेकिन उसके साथ में नेगेटिव एस्पेक्ट भी बहुत मिलते हैं। अब यहाँ पर जब तक आपको रोग का पूरा पता ही नहीं है तब तक आप ऐसी बेहूदी डिमांड भी करते रहेंगे, वो भी ठीक है, क्योंकि पहले आपको यही पता नहीं है कि आपका जो बैक पेन है, स्पाइनल पेन है, लंबर पेन है, लंबेगो है, उसमें चेंजेस क्या हुआ है।
बॉडी के अंदर क्या हुआ, क्या खराबी हुई और किस वजह से ये पेन ओरिजिनेट हुआ और जनरेट हुआ है। तो पहले तो स्पाइन को आप देखते हैं तो ये पूरा जो हमारा स्पाइन है वो सर्वाइकल गर्दन के हिसाब से, गर्दन से यहाँ शुरू होता है, सर्वाइकल स्पाइन लेंगे, फिर थॉरैक्स स्पाइन आएगा, फिर लंबर स्पाइन आएगा और लास्ट में जो हम जिसको हम बोलते हैं कि कॉक्सिक की जो बात है वो स्पाइन के अंदर नहीं माना जाता है, लेकिन वो स्पाइन को टच हुए तो सेक्रोइलियक जो रीजन में वहाँ की जो हड्डी आएंगी। अब सर्वाइकल जो है, सर्वाइकल रीजन में 7 मणका है, वर्टेब्री है, 7 वर्टेब्रीज आर देयर। बाद में जो आएगा थॉरैक्स की बात है कि पीठ जो बनाती है उसमें हम 12 बोलते हैं कि 12 वर्टेब्रीज आर देयर। और लंबर में 5 आती है तो 5 वर्टेब्रेज आर देयर, 7, 12 एंड 5। अब ये जो वर्टेब्रास है वो जो एक डिज़ाइन है स्पाइन का, वो अपने आप ऐसी कुदरत की रचना है, इतनी कॉम्प्लेक्स रचना है और इतनी सिंपल भी है, तो उसको स्पाइन को मूवमेंट देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है एंड साथ साथ में हम अगल बगल में भी देख सकते हैं तो ये मूवमेंट भी आती है और आगे पीछे की मूवमेंट भी आती है, स्पाइन की हर प्रकार की मूवमेंट। फिर भी ये हर वर्टेब्री, हर मणका है एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, ये अपने अपने जॉइंट में से निकलता नहीं है, फिसलता नहीं है और उसके लिए बॉडी कुदरत ने काफ़ी कुछ उसके अंदर एनाटॉमिकली कुछ चीज़ें बनाई है, स्पेशल चीज़ें बनाई है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो स्पाइन के वर्टेब्री है, मणका है, वो बोन से एक प्रकार के बोन है जिसको हम अस्थि बोलते हैं। तो एक प्रकार के बोन जो है, तो बोन तो सॉलिड होंगे, आपको भी मालूम है वो सॉलिड है। अगर स्पाइन को सीधी बना देते कुदरत, अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने इसको सीधा बना दिया होता कि स्पाइन एकदम से, तो हम बिल्कुल इधर उधर मूवमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने 24 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, छोटे 24 पीस को मिलाकर अब सीधी एक स्पाइन बनाई। हालांकि कहीं से भी हम मुड़ सके इसीलिए ये जॉइंट्स जरूरी थे। तो ये छोटे जो पार्ट है वो जो मणका बोलते हैं, हम वर्टेब्री बोलते हैं, तो उसके अंदर 2 वर्टेब्रे के बीच में इसको एक दूसरे के साथ टच ना हो पाए और एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए बीच में गादी जैसी रचनाएं भी बनाई है। तो स्पाइन है, गादी जैसी रचना है। फिर ये जो स्पाइन है, जो मणका है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, इसको बांधे रखने के लिए भी साथ में स्नायु, मसल एंड टिश्यूज़ का एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। तो हालांकि हम ऐसे झुके तो भी वो बांधे रहेगा, ऐसे झुके तो भी वो बांधे रहेगा, आगे झुके पीछे झुके कहीं भी काम किया तो स्पाइन के मणके एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही रहेंगे, वो बिल्कुल ही अलग नहीं हो पाएंगे। अब ये स्पाइन को बेसिकली आपने समझ लिया है, तब हम आगे जाएंगे कि ये जो मणका है, गादी है, कार्टिलेज है, तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो जब आप बोलते हैं कि भाई मेरा बैक पेन है, तो बैक पेन है मतलब क्या, हर बार आपको क्या पेन मणका में ही रहेगा, या बोलते हैं कि भाई हमारा तो डिजेनरेशन हो गया है और डिजेनरेशन की वजह से बैक पेन है। तो नॉर्मली क्या रहता है कि जब आप एक डॉक्टर को ये बताएंगे कि भाई बैक पेन है, तो डॉक्टर को पहले ये जानना पड़ेगा कि भाई 3 चीज़ है, आपके जो वर्टेब्रे स्पाइन के उसके अंदर कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है कि नहीं हुई। दूसरी बात है या तो कार्टिलेज में है कोई प्रॉब्लम, और तीसरा है या तो सराउंडिंग लिगामेंट में या मसल में है। अब जब तक ये आप ठीक से डायग्नोस नहीं करते तब तक आप कोई ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं कर सकते, सीधी बात है ना। क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, समझो कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं मणके की, वर्टेब्रे की, और वो बोन है, बोन की अगर आप ठीक कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम है मसल में, लिगामेंट और मसल में, जॉइंट में, तो क्या करेंगे आप। तो जब तक ये डायग्नोस ठीक से नहीं होता है तो तब तक कोई भी पेन की ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकती। नॉर्मली लोगों की एक मान्यता भी है कि वो तो स्पाइन तो बहुत डेलिकेट है और कैसे भी करो तो वो एक छोटी सी जर्क लग जाएगी तो भी हमारा डैमेज हो सकता है,
और ये कार्टिलेज जो आप बोलते हैं, कादी बोलते हैं, उसमें भी डैमेज होता है, उसका भी डीजनरेशन हो जाता है और इसकी वजह से ही ज़्यादातर बीमारियां होती है। नॉर्मली लेडीज़ को ये गलतफहमी हमेशा रहती है कि भाई एक तो हमारा किचन जो है स्टैंडिंग किचन है, पूरा दिन खड़े खड़े हम काम करते हैं, इसकी वजह से हमारे लंबर में प्रॉब्लम है। और दूसरा एक है कि डिलीवरी अगर सिसेरियन सेक्शन से है तो अगर जो भी इंजेक्शन दिया है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये हर सालों के सालों तक ये लोग ये मिथ को पकड़ के चलते हैं कि लेडीज़ में बैक पेन ज़्यादा रहती है। अब ये है कि गादी की वजह से, मतलब कार्टिलेज की वजह से बैक पेन है कि नहीं, वो तो पहले ठीक से देखना पड़ेगा। ज़्यादातर जो हमने देखा है कि लोग एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन के लिए भी तैयार नहीं होते। हालांकि मैं मानता हूं कि एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन 100% नहीं है डायग्नोस के लिए भी। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि वो करवाने से आपका डायग्नोस ठीक से हो जाएगा, लेकिन किसी भी डॉक्टर को फर्स्ट हैंड डायग्नोस के लिए कुछ तो चाहिए। वी डोंट हैव साइट, जैसे महाभारत में संजय की दिव्य दृष्टि थी, कोई दूर बैठे बैठे देख सकते थे, ऐसे कोई डॉक्टर के पास ऐसी दृष्टि नहीं है कि हम बस ऊपर से देखकर आपके जॉइंट के अंदर की सिचुएशन को भाप लें कि भाई इसमें वर्टेब्रे है वो डिजनरेट हुई है या तो कार्टिलेज डिजनरेट हुई है। तो ऐसे हाल है कि कुदरत ने भी इतना डेलिकेट नहीं बनाया है। हम सबको मालूम है कि वायु की जो बीमारी है वो आफ्टर 40, 45 या 50 के एज के बाद में शुरू होती है और वायु की अवस्था भी वही है। आजकल बात अलग है कि आजकल तो लोग 25-30 साल के लड़के भी वात व्याधि लेकर घूमते हैं, वो अलग से एक फैक्टर है। लेकिन जब बात रहती है कि भाई हम लंबर डिसऑर्डर की हम बात करते हैं, बैक पेन की हम बात करते हैं, तो इतनी डेलिकेट चीज़ नहीं है कि आपके कार्टिलेज इतनी आसानी से डिजनरेट हो जाए, या तो फिर इतनी आसानी से आपका वर्टेब्री है, मणका है, वो डिजनरेट हो जाए। ज़्यादातर मेरे हिसाब से, मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से, मोर देन 80 to 90% पेशेंट जिनमें हड्डी में, मतलब मणका में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ना तो उनकी कार्टिलेज में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इनकी मैक्सिमम प्रॉब्लम जो रहती है वो है लिगामेंट एंड मसल में। और लिगामेंट एंड मसल की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर पेन वहीं से होती है और पेन वहीं से ही मैनेज करनी है। हड्डी में अगर मणके के अंदर, वर्टेब्रे के अंदर अगर कोई डिजनरेट हुआ है तो वो कोई दवाइयों से ठीक होने वाली बात नहीं है, उसके अंदर तो काफ़ी लंबी ट्रीटमेंट चलेगी। उसी हिसाब से जो कार्टिलेज की हम बात करते हैं, तो कार्टिलेज के अंदर भी ऐसा कोई ब्लड सप्लाई नहीं है कि वो रीजनरेट हो सके। तो एक बार डीजनरेट हो गया वो परमानेंट डीजनरेशन आती है। और ये दो चीज़ अगर है डिफ़िकल्ट, तो उसमें तो किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास से ही आपको ट्रीटमेंट करवानी है। घर तो जो भी प्रयोग करते रहे घर, वो आपको इसमें कोई काम नहीं है। अब ज़्यादातर लोगों को क्या है कि जैसे पेन शुरू हुआ, यूजुअली लेडीज़ में ज़्यादा रहती है कंप्लेन, तो उनकी एक आदत रहती है, अरे बार बार कंप्लेन कौन करे, और ऐसी छोटी सी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास क्यों चला जाना है। हम है ना, हमारे पास जुगाड़ है, ये पूरा इंडिया जुगाड़ पे ही चलता है आजकल, और इसीलिए हम शायद आगे भी है। आज यूरोपियन अमेरिकन कंट्री से भी आप देखते हैं कोरोना की फाइट में, कोरोना की जो हम लड़ाई करते हैं कोरोना के अगेंस्ट, उसमें आज हम इंडियंस कहीं आगे इन लोगों से, क्योंकि हमारी पूरी मेंटालिटी है वो जुगाड़ की मेंटालिटी है। तो लेडीज़ नॉर्मली बैक पेन होती है शुरुआत, तो वो जुगाड़ कर लेती है, और उसके पास कई सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं कि जो हेरिडिटरी या तो किसी ने बोला है ऐसे करके उनको मिल जाते हैं ऐसे फॉर्मूलाज, जैसे कि सौंठ का पानी लिया, या अदरक डालकर चाय वगैरह ज़्यादा ले ली, या मेथी दाने ले लिए आपने, एरंडी का तेल ले लिया। और खाने में ऐसी कई सारी चीज़ें छोटी मोटी रहती है कि वो खाकर वो बोलते हैं कि हाँ इसकी चाय बना लो, इसको उबाल कर काढ़ा बना दो, ये सब करके मिक्स करके हमने ले लिया तो हमें अच्छा लगा। दूसरी बात ये है कि शुरुआत की जब ये पेन की जो कंप्लेन रहती है, उसमें कहीं ना कहीं जाकर किसी भी तेल का मालिश कर लेते हैं। तो हर अलग अलग रीजन में अलग अलग तेल की मालिश होती है। कहीं सरसों के तेल से मसाज कर लेते हैं,
कहीं पर तिल का यूज़ करते हैं या कहीं पर कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं। पूरे इंडिया में इतने सारे अलग अलग तेल मिलते हैं और कहीं कोई लोग ज़्यादा जानते हैं तो वो तेल के अंदर लहसुन या मेथी या ऐसी कुछ चीज़ें डालकर उसको उबाल कर एक अलग से अपना खुद का पेन किलर तेल बना देते और मसाज कर देते और शुरुआत में उससे आराम भी मिलता है। तो जो लम्बेगो की हम बात करते हैं, इसमें ये जुगाड़ जो है इनिशियल स्टेज में जो करते हैं हम मसाज वगैरह, तो वो पर्टिकुलरली जो लिगामेंट है या तो मसल पेन है उसके ऊपर ही काम करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, पूरी आपको रोग की जानकारी नहीं है, किस मसल या किस लिगामेंट को आपने स्ट्रेच किया है या तो कैसे उसको आपको रिलैक्स करना है, वो आपके पास नॉलेज नहीं है और ना तो आप डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। तो ये कंडीशन में क्या रहेगा कि अपने आप जो आप ट्रीटमेंट करने का जो ट्राई करते हैं मसाज करके शेक करके, उससे धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स बढ़ती है, कम नहीं होती है। टेम्पररी फ़ायदा मिलता है लेकिन जो मसल को डैमेज हुआ है, जो मसल को नुकसान हुआ है, वो बढ़ता जाता है और जब बढ़ता जाता है नुकसान तो जाकर आगे चलकर ये बड़ी बीमारी के तौर पर हमारे सामने आता है। तो ये जो लम्बेगो की पहले एक आप समझ एनाटॉमी समझ लेते कमर की, फिर पेन कैसे हुआ ये समझते, तो ट्रीटमेंट की अब बात रहेगी कि ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं। अब हर एक को एक ही इंटरेस्ट होता है कि व्हाट आर यू प्रिस्क्राइबिंग फॉर पेन एंड what would be the best treatment for the lumbago pain management in the lower back pain area. Now we cannot prescribe any one medicine, definitely no. Yes, we do have sort of many formulations available in the market. There are hundreds and hundreds formulas of products available in the market in the name of painkillers. Most common painkiller in Ayurveda is Gogulu. तो हम लोग गोगुलू बहुत यूज़ करते हैं। देन डिफरेंट काइंड ऑफ गोगुलू टैबलेट्स आर देयर, योगराज गोगुलू, महायोगराज गोगुलू और सिंहनाथ गोगुलू, रासनादी गोगुलू, hundreds of products are available in the market. But is it enough? That is the question. Just taking some medicine, Gogulu medicine for some time, will it be enough? No, it cannot be. आहार विहार एंड औषध, जब तक आहार एंड विहार का कंसेप्ट आप नहीं करते तब तक मेडिसिन मे नॉट बी मच हेल्पफुल. सो द डेफिनेटली नाउ द क्वेश्चन इज, आहार विहार एंड औषध की जब बात करते हैं तो यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट फर्स्ट ऑफ ऑल. द डाइट विच एग्रेवेट्स वाता, it is not advisable during the painful condition. One has to control. उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आपके पास ज़्यादा चॉइस ही नहीं है. अगर दवाइयाँ नहीं खानी है तो डाइट को ठीक करो. दूसरी बात है, जो सीज़न वगैरह है, एसी वगैरह है, उसका उपयोग जो है वो आपको कम करना ही पड़ेगा. सो देर आर मेनी डूज एंड डोंट्स. You can go through the internet and you can find out which are good for Vata and which are not good for Vata, or Vata pacifying methods. So diet and activities, lifestyle activities. ज़्यादातर बैक पेन, लोअर बैक पेन कैन बी कंट्रोल्ड ओनली बाय बेड रेस्ट. ये बहुत सत्य है, सच भी है. अगर शुरुआत के स्टेज में इफ़ यू डू बेड रेस्ट फॉर कपल ऑफ डेज, the pain will subside automatically and the damage to the muscle and ligament will be also recovered by the body itself. प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास धीरज नहीं है, और हमारे पास धीरज नहीं है, सो वी ट्राई टू गेट इट द फास्टर सॉल्यूशन, और इन द नेम ऑफ फास्टर सॉल्यूशन वी टेक मेडिसिन, बट विच इज़ नॉट द परफेक्ट आंसर. सो वी गो विद द डाइट, we go with the activities or certain kind of exercise. Asanas are good, exercise is good. Particular pain है तो particular asanas will be there. Particular physiotherapy is also helpful, so that is also needed there. जो मसाज करने की बात है, मसाज is very technical thing. If somebody is knowing to do ideal massage, this will be fantastic. But if you don't know how to massage and what to massage and where to massage, it can be a problem. मसाज के बाद आयुर्वेद ने हमेशा ऐसा बोला है कि मसाज के बाद स्वेदन करना चाहिए, मतलब कि शेक करना, शिकायत करनी चाहिए.
अब ये शिकायत करना है, शेक जो करना है वो किससे करना है? तो आजकल तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फर्मेंटेशन मिलते हैं, और ज़्यादातर तो ये कोल्ड पैक वाली बात बहुत चलती है कि भाई ठंडी बैग, आइस बैग से शेक करो, बर्फ़ से शेक करो, तो पेन बहुत जल्दी कम हो जाता है। अलग अलग थियरी है, अलग थियरी है, मतलब कि आयुर्वेद के ज़माने में शायद बर्फ़ नहीं था, आइस पैक नहीं था, तो उसका उल्लेख नहीं है। लेकिन आयुर्वेद ने हमेशा गर्म शेक की बात की है। हाँ, हो सकता है आप ड्राई शेक करो या तो फिर वेट करो, वो डिफरेंस होता है। आप पानी की, गर्म पानी की बोतल ले लो और उससे सिकाई करो, या गर्म पानी जहाँ पर दर्द है वहाँ पर धार करते रहो, तो भी उसमें आराम मिलता है, तो वो वेट आएगा। या तो फिर आप गर्म रेती की सैंडबैग बनाकर, या तो गर्म पोटली मेथी की या अजवाइन की पोटली बनाकर शेक करो, तो वो ड्राई हुआ। तो ड्राई शेक होता है, वेट शेक होता है, वो कर सकते हैं। कोल्ड शेक की जब बात आती है तब आयुर्वेद के पास, हमारे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मॉडर्न में ऐसा बोलते हैं कि कोल्ड शेक करने से ये डीप तक ब्लड को वापस भेजता है और डीप तक इसकी सेंसेशन चलती है। डिपेंड्स। मैं हमेशा मेरे पेशेंट के ऊपर ये छोड़ देता हूँ कि आपको किस प्रकार का शेक करना है। जिस प्रकार का शेक करने से फ़ायदा मिले वो करो, लेकिन आयुर्वेद तो बोलता है कि ये आपको वार्म करना है या तो हॉट शेक ही करना चाहिए। तो एक बात आई डाइट की, दूसरी बात आई आपको पोस्चर्स की, एक्सरसाइज की, प्रॉपर फिजियोथेरापी की, फिर ये बात आई मसाज और शेक की। अब टिपिकल ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे लम्बेगो के लिए। आज के दिन में हम सिर्फ लम्बेगो की बात करते हैं, लोअर बैक पेन की बात करते हैं। सो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट लोअर बैक पेन। और ये जो बात है लोअर बैक पेन में, देयर इज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मेंशन इन आयुर्वेदिक बुक्स विच बी कॉल्ड कटी बस्ती। अब ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, कई सदियों से ये ट्रीटमेंट होती रही है इंडिया के कई कोने में, और आज एकदम से पॉपुलर भी हुई है और रिजल्ट भी देती है। उसमें आपका पेन, वेर एवर यू हैव पेन, पर्टिकुलर वर्टेब्री, पर्टिकुलर साइट ऑफ द पेन, उसको सेंटर में रखकर आटे से एक डैम जैसा बनाते हैं स्ट्रक्चर, और वो डैम के अंदर मेडिकेटेड ऑयल आप पोर करते हैं, और वो मेडिकेटेड ऑयल शुड बी वार्म देयर फॉर कंटिन्यूस 30 to 40 मिनट्स। और वो जो ट्रीटमेंट है, हाँ कई बार देखने से ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगी, उसकी रीडिंग राइटिंग भी मिल जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से आपको बहुत कॉशियस रहना है घर पे अगर आप करना चाहो तो। क्योंकि प्रॉब्लम वहीं पे है कि आप जैसे तेल गरम करते हैं, कई बार तेल एकदम से जैसे उबला हुआ रहता है, और अगर आपने गलती से किसी दर्दी को उसकी पीठ पे जो डैम में डाल दिया, तो पेन तो नहीं जाएगा लेकिन बर्न हो जाएगा, और ये बर्न जो होगा उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसकी बाकी की जो प्रॉब्लम्स रहेगी, that will be very serious one. So serious burn can be possible during Katibasti treatment. Better you should go through technical person, a therapist, Ayurveda therapist is good to perform this kind of treatment on real patient. So the treatment की बात करते हैं तो diet, exercise, activities, local application, massage, steam और शेक, एंड देन कटी बस्ती। इतनी बात तो सबको मालूम है, एंड everybody knows about it. Medicine, yes, we do talk about Dashamula, Rasna, and Gugulu. Different kind of Gugulus are there, and we use methi or castor. Methi is a fenugreek, castor, ginger. That all herbs and spices are used for the Ayurvedic medicine. So medicines are a lot many available in the market, but we know that even though after application of these many things, we don't have satisfactory pain management. So in my practice, since last 32 years, I face this issue with my patient, that prescribing several herbs for several weeks or several formulas for several weeks, my patients are not 100% satisfactory.
And I know that 100% pain management is not possible. But it was lacking. Something it was lacking. I always thought that I should do much better. I should do much better. I do something else. And at the result that we found out something, we named it as a arthrothermia. That is a special technique derived from the combination of multiple systems of medicine. इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे. Next week I'll tell you about this special treatment, and it has multiple therapies are involved in this treatment, and it works fantastically. आज के लिए मेरे हिसाब से हम यहीं पे ये सेशन को ख़त्म करते हैं. Thank you very much for joining me. Do like our channel and subscribe our channel, or give me your opinion and feedback by WhatsApp, so that we can take more focus according to your suggestions in the next series. Okay, friends? Thank you for joining. Have a good day. Good night. Namaste.